बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I start with the name of Allah, the most beneficent and merciful. This is class 9th and the period is English text and language. So today we are on week number 6 and video number is also 6. Date is also mentioned here, 3rd to 7th August and day Monday to Saturday. Today the unit number 6 we will, as you know about the book for English 9th, the book of English for 9th class is this one, published by Syntax Book Board, Jamshoro. We have already covered 5 chapters. The last one, the Holy Prophet lesson, the Shah Abdul Latif Bhai lesson, the Neem Tree poem, Mohenjo-daro another lesson, Helen Keller lesson, and today we will read the Daffodils. This is also poem. Daffodils. To pick up the page or pick up the book and open the page number 33. The daffodils. The daffodils are a kind of flowers. The color of daffodils is yellow and its height is 1 feet. And it is found everywhere in the lake districts of England. And then watery seasons or watery areas. Sector. This poem is written by William Wordsworth. William Wordsworth is a famous poet of England. He started new type of poetry which is called romantic poetry. So first of all we are going to read the introduction about the poet. In that introduction you will know about the William Wordsworth. Okay. So page number 33, the Daffodils. This poem is written by the famous English poet William Wordsworth. ये नज़म लिखी गई है मशहूर इंग्लिश शायर विलियम वर्ड्सवर्थ. He is a famous English. He was a famous English poet. Next to Shakespeare, John Milton, Spenser, etc. He was born in the beautiful Lake District of England in the year 1770. वो इंग्लैंड के खूबसूरत झील वाले डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे. There is a lake district in England. There is a district. The name of that district is Lake Districts. वहाँ पे झीलें बहुत पाई जाती हैं. 1770 में पैदा हुए थे. When he was born 1770. From his early days, he was very fond of flowers, birds, lakes, rivers, rocks and trees. बचपन से ही वो शौकीन थे, नेचुरल चीज़ों के शौकीन थे, शौक रखते थे. जहाँ पे वो फ्लावर्स देखते थे, फूल देखते थे, वो खुश हो जाते थे और उनको इंटरेस्ट, एक्साइटेड हो जाते थे, ज़्यादा तलाश में होते थे. या बर्ड्स, परिंदों को देख के खुश हो जाते थे, लेक्स, झीलों को, रिवर्स, दरियाओं को, रॉक्स, पत्थरों को, पहाड़ों को, एंट्रीज और दरख्तों को. हमेशा वो अपनी ज़िंदगी इन चीज़ों के दरमियान गुजारते थे. या तो कभी वो झील पे मिलते थे, या कभी फ्लावर्स के दरमियान मिलते थे, या कभी पहाड़ों पे मिलते थे, या कभी दरख्तों के दरमियान मिलते थे. क्यों? क्योंकि वो द फॉन्ड ऑफ नेचर. ही थॉट दैट नेचर इज एवरीथिंग. इवन ही थॉट नेचर इज अ गॉड. वो कुदरत को, नेचर को, नेचुरल चीज़ों को खुदा तस्लीम करते थे. पैथेटिक फिलॉसफी, पैथीज़म वाज देयर.
He used to spend much time enjoying their beauty. हमेशा उनकी खूबसूरती को enjoy करने के लिए वहाँ पे जाया करते थे, नेचुरल चीज़ों को देखने के लिए. He used to take long tours on foot and visit the beautiful natural scenes which he loved so much. वो हमेशा पैदल ही जाया करते थे, कभी भी ऑटोमोबाइल से किसी और ट्रांसपोर्ट का सहारा नहीं लिया उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ ने. और जो जो नेचुरल सीन्स उनको रास्ते में मिलते थे उनको एंजॉय किया करते थे, वो उनसे बातचीत किया करते थे. He always said that nature is a healer. He always said that nature is friend. He always communicated with the natural things. He tried. That is called romantic poetry. He started a new kind of poetry written in simple words about natural objects and simple country people. इन्होंने नए किस्म की शायरी की जो सिंपल वर्ड्स में लिखी जाती है, आसान वर्डिंग और आसान लोगों के लिए. There are two kinds of poetry in English or any another language. Number first, classical poetry and romantic poetry. The connection of classical poetry is with society. मुआशरे से जो जो चीज़ें मुआशरे में हो रही है, सियासत, पॉलिटिक्स या और जो भी चीज़ें, सटायर, आयरनी, जो भी चीज़ें मुआशरे में हो रही है, उन चीज़ों पे शायरी करेंगे तो that is called classical poetry. And also this kind of poetry is connected with the mind. We always think, we always experience something and compose in that in poetry. That is called classical poetry. Romantic poetry, जो भी चीज़, कोई चीज़ देख रहे हैं, नेचर देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं चीज़, उनके बारे में अपने ख्यालात. This is connected with the heart, our emotions. अपने ख्यालात जो देते हैं उनको कहते हैं romantic poetry. And he was the founder of romantic poetry, William Wordsworth. There was no this type of poetry was there before William Wordsworth. William Wordsworth, with the help of S.T. Coleridge, composed or published a book, Lyrical Ballads, in 1798. After then, this kind of poetry started. Now, this kind of poetry is also famous like classical poetry. Okay, and इस शायरी में सिंपल वर्ड्स यूज किए जाते हैं. एंड इन दिस पोएट्री वी ऑलवेज यूज यू कैन से quotations, idioms, idiomatical language, bombastic language, etc. He died in 1850. William Wordsworth died in 1850. He was born in 1770 and he died in 1850. Okay, he was 80 years old. So that is the introduction of William Wordsworth. William Wordsworth was born in Lake District of England in the year 1770. He was fond of natural things, natural beauty, flowers, lakes, birds, rivers, rocks and trees. He started new type of poetry which is called romantic poetry, simple words and about simple natural objects. Again and again I am repeating this romantic poetry because in board paper the question about that is there in the board paper. I think 2015 or 16. Okay, question आया है इसका इनका. That is why I am repeating. And now we are coming to the point. अच्छा, एक बात ये कि पैदल जाया करते थे, हमेशा सफ़र करते थे पैदल. तो डैफोडिल्स भी ये पैदल ही जा रहे थे झील के करीब. तो झील के करीब इन्होंने एक नए किस्म के फूल देखे, उनके बारे में उन्होंने ये शायरी स्टार्ट कर रहे हैं. I wandered lonely as a cloud. Wandered mean walk aimlessly. कोई भी पर्पस नहीं होता, ऐसे ही हम घूमते हैं तफरी के लिए, ऐसे ही पर्पसलेसली we always wander. We always go to and fro from one place to another place without any purpose. लेकिन है कि मैं एक बादल होता है जो बरसने के बाद सफ़ेद बादल होते हैं, वो कभी इधर से आते हैं कभी उधर से आते हैं, वो भी पर्पसलेसली घूमते हैं. सिमली दे रहा है, सिमली, दैट इज सिमली. कंपेयर कर रहा है अपने आप को बादल से. आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. मैं जा रहा था, घूम रहा था झील के करीब जैसे बादल घूमता है. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. वो बादल कभी कभार वेल्स, नदियों में के ऊपर और पहाड़ों के ऊपर घूमता है.
वैसे ही मैं जा रहा था बादल की तरह, जो बादल पर्पजलेसली घूमता है, मैं भी पर्पजलेसली घूम रहा हूँ, कोई भी मकसद नहीं था मेरा, ऐसे ही घूम रहा था। When all at once I saw a crowd, एक ही झलक में एकदम मैंने एक मजमा देखा, बड़ा मजमा देखा। A host of golden daffodils, वो मजमा जो था वो मतलब बहुत सारे वहाँ पे जो गोल्डन डेफोडिल्स मतलब सुनहरी कलर के डेफोडिल्स फूल का था, नरगिस का फूल जिसको बोलते हैं हम सिंपली। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, कहाँ पे था? झील के बिल्कुल करीब, और ऊपर दरख्तों के नीचे, बड़े दरख्तों के नीचे। फ्लूटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, वो फ्लूट झूम भी रहे थे डेफोडिल्स एंड डांस भी कर रहे थे, जैसे ब्रीज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, डेफोडिल्स फ्लूट भी कर रहे थे, झूम भी रहे थे और डांस भी कर रहे थे। यू मस्ट कीप इन द माइंड डेफोडिल्स वैंडरिंग देयर एंड देयर इज अ लेक, बिसाइड द लेक ही सॉ अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, वो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, कितना मौसम अच्छा। उस मौसम में डेफोडिल्स झूम भी रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, और ये बयान कर रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ, हाउ नाइसली ही इज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। सीनरी, सेकंड स्टेंजा, कंटिन्यूअस इज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे तारे चमकते हैं, एक तारे चमकते हैं, डगमगाते हैं, चमकते हैं जिसको बोलता है, कभी कभार हमारी मतलब एटमॉस्फेयर की वजह से वगैरह वगैरह। जैसे आसमान पे मिल्की वे इज़ आवर गैलेक्सी, द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी मिल्की वे, जैसे आसमान पे हमारी गैलेक्सी पे तारे चमकते हैं और डगमगाते हैं, वैसे ही डेफोडिल्स चमक भी रहे थे, डगमगा भी रहे थे, क्योंकि दूर थे तो वो सूरज की रोशनी आँख का मतलब उसकी वजह से वो चमक भी रहे थे, कभी कभार लाइट दे के मतलब डगमगा भी रहे थे। They stretched in never-ending line along the margin of a bay, वो मतलब फैले हुए थे, इतने फैले हुए थे कि जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ वहाँ तक डेफोडिल नज़र आ रहे थे। नेवर एंडिंग लाइन मतलब कभी ख़त्म होने वाली लाइन नहीं थी उन लोगों की। विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत कोशिश की, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, लेकिन उनको किनारे के करीब, झील के किनारे करीब हर जगह डेफोडिल्स नज़र आ रहे थे, कोई ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, मतलब वो फैले हुए थे, कभी भी ख़त्म ना होने वाली लाइन पे तक, और किनारे के करीब। 10,000 आई सॉ आई एट अ ग्लैंस, 10,000 मैंने एक झलक में देखे, यू एक झलक लाइक दैट, एक झलक में मैंने 10,000 देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, टॉस मतलब वो टॉस कर, कभी हेड इधर कर रहे थे, कभी हेड इधर कर रहे थे, स्प्राइटली डांस मतलब खुशी वाली डांस में, जैसे कि वो मुतमईन थे, सेटिस्फाई थे, ब्रीज के साथ मिलके वो खुश थे, सारी नेचुरल चीज़ों के साथ मिलके वो डेफोडिल्स बहुत खुश थे। करीब पानी था, मतलब सारी नेचुरल चीज़ें आपस में एक माहौल बना रही थी, एक पार्टी बना रही थी। अच्छा, 10,000 एट अ गैलेंस, could he imagine how, sorry, could he count? Did he count there that there was the 10, 1 2 3 4, उन्होंने काउंट किए थे? No, he did not count, but it is imagination. That is called artistic truth or poetic truth. ये poetic truth होता है, artistic truth होता है। हालांकि चीज़ गलत होती है, झूठ होती है, लेकिन हमें चीज़ वो सही लगती है। वो पोएट्री के अंदर अपने पोएट्री के इस या उसकी फ़न की वजह से इस तरीके से बयान करता है कि वो चीज़ हमें सही लगती है कि 10,000 वाकई में होंगे वहाँ। दैट इज़ कॉल्ड आर्टिस्टिक ट्रुथ, एंड विलियम वर्ड्सवर्थ इज द बेस्ट पोइट बिकॉज ऑफ दैट आर्टिस्टिक ट्रुथ और पोएटिक ट्रुथ। स्टैंजा नंबर 3, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटेड द स्पार्कलिंग वेव्स इन गिली। अच्छा, उनके करीब, झील के करीब एक लहरें थी। अच्छा, लहरें झील के करीब जा रहे थे, वो भी डांस कर रही थी, क्योंकि हवा चल रही थी, वो भी इधर उधर हो रही थी, नाच रही थी। देखो पर्सोनिफिकेशन है ये, कैसे देखो वेव्स डांस कर रही है, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं, लेकिन डेफोडिल्स उन वेव्स से भी ज़्यादा तरीके से नाच रहे थे, ज़्यादा तरीके से खुश थे। A poet could not but be gay in such a jocund company. एक शायर कुछ नहीं कर सकता लेकिन खुश हो सकता है। In such a jocund company. What do you mean by jocund company? हम मिजाज दोस्ती जो होती है, हम मिजाज कंपनी जो, हम मिजाज साथी जो होता है, मिजाज मिलते जुलते हैं। अब हाउ कैन पोइट से द jocund company? He was a poet, he was a living thing, and
डेफोडिल्स, दैट इज नॉट मीन ह्यूमन बीइंग। डेफोडिल्स में भी नेचर है और पोइट के अंदर भी नेचर है। अब पोइट के अंदर नेचर है, वो खुद वाली नेचर इससे डेफोडिल से मिला रहे थे, इसलिए कह रहे थे कि मैं अब सेटिस्फाइड। दो नेचर्स का आपस में मेलाप था, हम मिजाज कंपनी, हम मिजाज साथी, हम मिजाज दोस्ती, इसी को ही कहते हैं। और पोइट क्या कर सकता है, एक सीन चल रहा है, देयर आर डेफोडिल्स लाइक दे आर शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग एंड दे आर आल्सो डांसिंग, टॉसिंग देयर हेड्स लाइक वेव्स आर आल्सो डांसिंग। उस सीन को पोइट देखिए, क्या उसको मिल रहा है, कुछ भी उसको प्रॉफिट, कुछ भी पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन एक अंदर की खुशी मिल रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रही है। उसी सेटिस्फैक्शन के लिए वो घूमने जाते थे बाहर, विलियम वर्ड्सवर्थ। उन्हीं मतलब वो अंदर को खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर में जाया करते थे और उनको खुशी भी नेचर में मिला करती थी। हालांकि विलियम वर्ड्सवर्थ के पास बहुत पैसे थे, वॉज रिच पर्सन, इवन ही लाइक टू लिव इन द विलेज लाइफ और कंट्री साइड, ही डिड नॉट गो टू द सिटी साइड। ओके, अच्छा, इन फर्स्ट स्टेंजा विलियम वर्ड्सवर्थ वैंडरिंग लोनली एज अ क्लाउड। उन्होंने क्या देखा, वो कि एक बड़ा मजमा देखा, गोल्डन डेपो, सुनहरी कलर के डेफोडिल्स का। कहाँ पे थे, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, झील के करीब थे, दरख्तों के नीचे। और खुशी में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उस खुशी में वो नाच रहे थे। अच्छा, वो तारों की तरह दूसरे स्टेंजा में सिमिली दी है, मतलब कंपेयर किया है, कंपेरिजन है, कंटिन्यूअस एज दैट, तारों के साथ, जैसे तारे चमकते हैं, डगमगाते हैं, टमकते हैं आसमान पे, उनकी तरह भी डेफोडिल्स चमक रहे थे, डगमगा रहे थे। ठीक है, और दूसरे स्टेंजा में इमेजिनेशन की है कि आर्टिस्टिक ट्रुथ, पोएटिक ट्रुथ, 10,000 10,000 उन्होंने एक झलक में देखे। थर्ड स्टेंजा वेव्स बिसाइड देम, झील में जो लहरें थी वो भी नाच रही थी, लेकिन डेफोडिल्स ने डेफोडिल्स सही तरीके से नाच रहे थे। और थर्ड स्टेंजा बता रहे हैं कि मुझे इस कंपनी में ये जो पार्टी चल रही है, ये जो सीनरी चल रही है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक जौकन कंपनी, मतलब मैं हम मिजाज दोस्त मिल रहा है, हम मिजाज साथी मिल रहा है दो डेफोडिल्स के रूप में, क्योंकि ये नेचर के पुजारी थे, नेचर के फॉलोअर्स थे, नेचर को सब कुछ समझते थे। पैथिज्म फिलॉसफी इसको कहते हैं, नेचर को सब कुछ समझना। लास्ट स्टेंजा, फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई कोच आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। ये सब कुछ सीनरी देख के मैं अपने घर वापस आता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, वहाँ पे एक आरामदायक चेयर होती है जो टेक लगा के, मतलब जैसे थोड़ा बहुत आराम करते हैं वहाँ पे बैठ के, वो आरामदायक चेयर पे मैं जैसे भी बैठता हूँ, अपने आप को मतलब लेटता हूँ या बैठता हूँ वहाँ पे। इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, दो मूड होते हैं मेरे, या तो कभी कभार मेरा माइंड बिल्कुल खाली होता है, कुछ भी नहीं होता माइंड में, या कभी कभार मेरा माइंड में बहुत सारे दुख होते हैं, बहुत सारे मजबूरी, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, तो मेरा माइंड फुल होता है, पेंसिव मूड में होता है, उदास मूड में होता है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। वो मेरी अंदर की आँख जो होती है, मेरा अंदर की जो नेचर, मेरी फितरत जो होती है अंदर की, हार्टली नेचर जो होती है, ये डेफोडिल्स का नज़ारा, मैं आँख जैसे ही बंद करता हूँ मुझे वो डेफोडिल्स नज़र आते हैं, झील के करीब वो फ्लोटिंग एंड डांसिंग, झूम रहे हैं और नाच रहे हैं। तो वही नेमत है अल्लाह की तन्हाई में। हालांकि मैं तन्हा होता हूँ, कोई भी नहीं होता है, एसटी कॉलेज भी नहीं होता है, कोई भी नहीं होता है, मैं सिर्फ अकेला बैठता हूँ, और मेरी तन्हाई का साथी कौन होता है, डेफोडिल्स, नरगिस के फूल, नेचर खूब। क्योंकि पास्ट मेमोरीज को, ये पास्ट मेमोरीज जो होती हैं कभी कभार आपकी तन्हाई को दूर करती हैं, आप सोचते रहते हैं। तन्हा का मतलब ये नहीं कि आप तन्हा बैठे हैं और आपके माइंड में, अगर आपके माइंड में कुछ नहीं है तो फिर आप तन्हा हैं, अगर आप बैठे हैं माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं तो यू आर नॉट लोन। ओके, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स। और मेरा दिल जो है, मेरा दिल मतलब जो है वो भी खुशी से भर जाता है, नेचर की खुशी से, और वो भी डेफोडिल्स जैसे डांस करते हैं, मेरा दिल भी उनके साथ डांस करना स्टार्ट होता है। हाउ कैन अ हार्ट डांस? इट्स पल्पिटेशन, मतलब उनकी धड़कन होती है वो तेज़ ज़्यादा बढ़ती है, दिल भी मतलब खुशी खुशी के, जितनी ज़्यादा खुशी होती है दिल भी तेज़ धड़कना शुरू होता है, वो इंक्रीज इट्स पल्पिटेशन। ओके, सो दैट इज डेफोडिल्स, written by William Wordsworth। रोमांटिक पोएट्री का एक मकसद होता है कि इसमें मैसेज कोई नहीं होता है,
मैसेज रीडर खुद ले लेता है. What is the message of this poem? Our central idea, you can say, there is no message in romantic poetry. लेकिन हम मैसेज ले सकते हैं क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ was fond of nature. Okay? I am repeating once again. Memorize it. We are reading chapter number 6, The Daffodils poem, written by William Wordsworth. William Wordsworth was born in 1770. William Wordsworth died in 1850. He was 80 years old. William Wordsworth started a new type of poetry which is called romantic poetry. He used simple words and his objects were simple people and countryside people. William Wordsworth was born in Lake District of England. William Wordsworth was fond of nature or natural things, rivers, rivers, rocks, mountains, or you can say trees, flowers, etc. William Wordsworth always traveled on foot. He was pedestrian. William Wordsworth is telling that I wandered lonely as a cloud. What did he saw? He saw 10,000. He saw a host of golden daffodils. Where did he saw the host of golden daffodils? Beside the lake, beneath the trees. How many daffodils did he imagine? 10,000 daffodils at a gallons. What were they doing? They were fluttering and dancing in the breeze. In second stanza, he compared daffodils with the stars, with the shining and twinkling stars in the Milky Way. Okay, in the third stanza, he is comparing the daffodils with the waves. The waves beside them were dancing in the lake, and he outdid the moor. Daffodils were dancing better than the waves. But which wealth did he receive from that scenery? He was gay and he received the jocund company. The company which gave daffodils to him, the natural company. He was fond of nature, and the pure nature was there in the daffodils. And his pure nature from the heart mixes with that daffodils. Okay. In the last stanza, how many moods were there? 2 moods. Whenever he lies on his couch, he felt 2 moods: vacant and pensive. Okay. What did the last stanza is important because from this stanza, I think 4 years in your 4 years board papers, questions comes from this stanza. Same question. What happened when he came to the home or he said. Whenever he lies on his couch, the past memory of daffodils or scenery of daffodils flashes in his mind. That is called bliss of solitude. And his heart even also dances with the daffodils. ठीक है. अच्छा, as written the notes, the daffodils, about the daffodils. Daffodils के बारे में लिखा गया है कि daffodils क्या है, what is daffodils. अच्छा, उसके अलावा words meaning दी गई है. I have already given to you the words meaning in the content solution. Okay, page number 141, 142, 143. Okay, and question answers are given here, and I have given you the 10 years question answers in your content, or one extra question is also there. Okay, what was the poet doing? Question number 1, stanza number 1. Poet was wandering as a cloud. What did he see? He saw daffodils, a host of golden daffodils. Where were the daffodils? Beside the lake, beneath the trees. Describe the scene in your own words. अगर आपने भी daffodils देखे हैं, कोई और फूल देखे हैं, आप इसको describe कर सकते हैं. With second stanza, words meaning are there: continuous, going on without break, Milky Way, as I already told you, galaxy. अच्छा, question number 1, stanza number 2. With what does the poet compare the daffodils? The poet compared the daffodils with the stars. What resemblance does he find between the stars and the daffodils? Stars shines and twinkles on the Milky Way. Like that, daffodils were also shining and twinkling beside the lake. How many flowers were there? There were 10,000 flowers. Imagine 10,000 flowers. Where were the flowers? Flowers beside the lake, beneath the trees. Stanza number 3. Which of the two danced more? The waves or the daffodils? The daffodils danced more. The waves beside them were also dancing, but the daffodils danced more. What did the poet feel looking at the daffodils? The poet could not
feel other, but he was gay, khush, pleasurable, and he felt jocund company, in such a jocund company. How can wealth come to the poet? By looking at the scene before him. The poet received the jocund company while looking at the daffodils. That is the great wealth. What happens to the poet? Stanza number 4, sorry. What happens to the poet when he lies on his couch? ये क्वेश्चन बार बार 10 years में आया गया. जब वो कोच पे बैठते थे, अपनी आरामदायक चेयर पे बैठते थे, क्या होता था उनके साथ? The scenery of daffodils flashes him back when he lies in his couch, and he felt happiness of solitude there. Okay, even his heart was also dancing. Mention the two moods of the poet: vacant, pensive. How can the heart dance? The heart can dance by increasing his palpitation, you can say. Has this ever happened to you? अगर आपके साथ पहले हुआ है तो आप ये अपने आप से बता सकते हैं. ठीक है. अच्छा, पेज नंबर 141, content solution, central idea. I am revising the central idea. All questions I have solved in the exercises. Beautiful things, खूबसूरत चीज़ें, especially nature's beauty is a great source of happiness. खूबसूरत चीज़ें खास तौर पर खुसूसन जो कुदरत की खूबसूरती होती है. Why especially? Why have I written especially? Because William Wordsworth was fond of nature. ठीक है. और इसमें नेचर की बात बताई गई है, कुदरत की बात बताई गई है. सॉरी. A beautiful scene stays in the memory for a long time. एक खूबसूरत नज़ारा जो होता है वो याददाश्त मतलब हमारे माइंड में बहुत देर अरसे तक चलता है. Whenever such scene flashes back in the memory, it fills us with pleasure. जब भी ये हमारी मेमोरी मतलब वापस याद आ जाती है इसकी, तो हमें एक अजीब खुशी महसूस होती है जो कभी भी खुशी हम फील नहीं करते हैं. अच्छा, व्हाट इज द, ये 2014 में क्वेश्चन आया सेंट्रल आइडिया. 2015 में व्हाट डिड द पोएट फील लुकिंग एट द डैफोडिल्स? शायर ने क्या फील किया था? ही वाज फीलिंग प्लेजर और हैप्पीनेस while looking at the daffodils. 2015. What resemblance did he find between the stars and daffodils? 2019 में ये क्वेश्चन. Twinkling and shining. How can wealth come to the poet? By looking at the scene before him. ये क्वेश्चन ऐसे है लेकिन किसी ईयर्स में आया नहीं है. Mention the two moods of the poet and how can his hair dance? Vacant and pensive. What happens to the poet when he lies on his couch? मैं जैसे कि आपको पहले भी एम्फेसाइज कर चुका हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार आया. 2017 में, 2016 में, 2013 एंड 2011 में. ठीक है. जब भी वो अपने, मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. ओके, सो दैट इज द डैफोडिल्स. राइट डाउन हियर द डायरी. Memorize the central idea and question answers according to the 10 years. Okay. अच्छा, एक तो क्वेश्चन सी हो गया. क्वेश्चन नंबर 3B. क्वेश्चन नंबर 2B, सॉरी. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन द ब्लैंक्स. एक तो MCQs में भी आ सकते हैं इसके, फिल इन द ब्लैंक्स में भी. MCQs क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसका एक MCQs आ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसी में भी MCQs आ सकता है. ठीक है. तो फिल इन द ब्लैंक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. द राइटर ऑफ द पोएम द डैफोडिल्स इज, इसका नज़म का लेखक कौन है, पोइट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ. व्हेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ बोर्न? 1770. ही वाज फॉन्ड ऑफ नेचर. लेक डिस्ट्रिक्ट. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट. विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन डैश AD, anno domini 1850. The daffodils were imagined by the poet. Dash daffodils were imagined by the poet while wandering 10,000. The daffodils were beside the dash and beneath the trees, beside the lake. Moods of dash moods of the poet are mentioned too. The daffodils are compared with the stars and the waves. Okay. अच्छा, reference to context. आप लोग इस
पोएम को दोबारा मतलब अपने सेल्फ स्टडी घर में जाके पढ़िएगा और एक एक स्टेंजा वाइज इसका क्वेश्चन आता है। ये 2018 से स्टार्ट हुआ है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द नीम ट्री 2018 से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन, लेकिन अभी जैसे कि सिलेबस या मार्किंग चेंज हुई है, 100 नंबर का पेपर आएगा, तो अभी में भी एक्सीड हो सकती है इसके नंबर। ये एक स्टेंजा दिया गया होता है और इस स्टेंजा के नीचे में क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उनको आपको सॉल्व करना होता है। आप अगर स्टेंजा वाइज खुद पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, तो यू विल इजीली आंसर्स all of the questions. Okay, I have also given you as a sample, or you can say as an example, continuous as stars that shine. You can watch from your 2 stanzas I have given you. You can see these stanzas in your content page number, and I hope that you have understood the daffodils very well. And period is English grammar. Week number 6, video number 6. And today's topic is past tense and its forms. As in the previous class, I taught you parts of speech, previous classes, sentence and its kinds, tenses and time and its types, tenses and its 4 forms. Okay, we learned there are 12 tenses. Tenses are the part of your syllabus of 9th class. That is why we are focusing on the tenses, because if you know about the tenses, you can speak English very well and fluently, and you can also compose English also very well. So in translation question number 9, your board paper translation, that is also from tenses. And in MCQs you will find 6 or 7 MCQs from the tenses. Okay, and in active, if you have learned about the tenses, you know about the tenses, you can learn active voice, passive voice very easily, and also direct and indirect very easily, and modal verbs you will also learn very easily. Okay, so tenses is the basic thing. We must focus on the tenses. Before going to learn about the past tense, how many forms of past tense? There are 4 forms of past tense: simple, continuous or progressive, simple and indefinite, continuous or progressive, perfect continuous or perfect progressive. Okay, we will learn today past, simple or indefinite tense. Before going to learn about the past, simple or indefinite tense, you must keep in the mind sentence structure. जुमला बनता कैसे इंग्लिश में? First of all, you will use subject, doer of an action, after then helping verb, main verb, object and other words. Okay, definition or what is past simple tense? वो काम, वो जुमला है, वो काम जो काम हमने किया है, पास्ट में ही किया है, मतलब अभी वक्त गुजर गया वो, उसको कहते हैं हम पास्ट सिंपल टेंस. There is close connection of past simple tense and present perfect tense. ठीक है, बस past simple tense जो होता है वो माजी में ही माजी को शो करता है, present perfect tense completion को शो करता है. ठीक है, माजी में जो आपकी हैबिट होती थी, कुरैश बुतों की पूजा करते थे, that is also called past simple tense. Habit and जो काम आपने किया है, मैंने खाना खाया, okay, that is called past simple tense. Rules, helping verb, HV stands for helping verb. Past simple tense no helping verb. Past simple tense के helping verbs नहीं होते हैं. As we have already learned, present simple tense helping verb no. Present simple tense के भी helping verbs नहीं होते, past simple tense के भी helping verbs नहीं होते. Present continuous tense is MR, present perfect tense has have, present perfect continuous tense has been, have been. Past simple tense no helping verb. Form of main verb. How many form of main verb? 4 form of main verb are there. First, second, third, ing form or 4th form you can say. Okay, so with past simple tense we will use second form of main verb. Keep in the mind, we always use second form just with past simple tense, not with any other sentence. सिर्फ past simple tense में ही हम second form use करते हैं, बाकी किसी भी tense में हम second form use नहीं करते हैं, वो भी affirmative sentence में. Number 3, third, negative.
use did not, symbols. If there is no helping verb, there is symbol. Did is symbol of past simple tense. Use did not between subject and main verb and convert second form of main verb into first form. डिड नॉट यूज करें और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के दरमियान, और सेकंड फॉर्म को हम ऑलवेज कन्वर्ट इनटू फर्स्ट फॉर्म. ठीक है. इंटरोगेटिव. पुट डिड बिफोर सब्जेक्ट convert second form into first form and question mark at the end. Did हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे and we always convert second form into first form in interrogative. लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे. ठीक है. नंबर 5 उर्दू सेंस. जुमले के आखिर में, उर्दू के जुमले के आखिर में ता, था या ते, थे, आए, या ये आए तो समझ लेना वो पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है. You have to translate it according to the rules of past simple tense. For example, मैंने खाना खाया. मैंने खाना खाया. ठीक है. How can we say that is a sentence of past simple tense? First of all we will go at the end of sentence. जुमले के आखिर में जाएंगे. उर्दू सेंस देखेंगे कि ये उर्दू सेंस पास्ट सिंपल टेंस में आता है कि नहीं आता है. लास्ट में क्या है? या. अगर या हो या ता था हो तो वो समझ लें पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है. सबसे पहले हम लोग मैंने खाना खाया, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर माइंड में लाएंगे. ट्रांसलेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कीप इन द माइंड सेंटेंस स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यूज सब्जेक्ट. Which is subject here? मैंने. Why is मैंने subject here? Because मैंने is doing something. मैं जो हूँ काम करने वाला है. ठीक है. What is the English of मैंने? I. What we will use after then? Sentence structure helping verb. Helping verb we will go. Rule number 1. Helping verb no helping verb. Past simple tense and present simple tense. Helping verb नहीं होते हैं past simple tense के, तो हम helping verb यूज नहीं करेंगे. उसके बाद क्या यूज करेंगे? main verb. main verb की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4 फॉर्म. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. ओके. तो पास्ट सिंपल टेंस के साथ कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. व्हाट इज मेन वर्ब हियर? खाया. टू डू समथिंग. व्हाई इज मेन वर्ब? खाया इज मेन वर्ब क्योंकि वो एक्शन एक्ट कर रहा है. द डेफिनेशन ऑफ वर्ब इज एक्शन. ओके. व्हाट इज इंग्लिश ऑफ खाया? खाने को क्या कहते हैं? ईट. ईट इज फर्स्ट फॉर्म, एट इज सेकंड फॉर्म, ईटिंग इज थर्ड फॉर्म, ईटिंग इज फोर्थ फॉर्म. व्हाट विल वी यूज हियर? एट. A-T-E. एट. अच्छा. आफ्टर देन व्हाट वी यूज? ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट हियर? खाना. ओके. व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ खाना? अ मील. I ate a meal. That is affirmative sentence. So negative. How will convert into negative? Use did not between subject and main verb and convert second form of main verb into first form. क्या करेंगे? ये subject और main verb के दरमियान हम यूज करेंगे did not और convert करेंगे इसको second form को. ये mind में you must keep in the mind. If we will use did, then we will convert the second form into first form. Eat a meal. Okay. Interrogative. Put did
before subject, convert second form into first form, and question mark at the end. Okay. First of all, we'll use did I eat a meal. डेड सबसे पहले यूज किया, सेकंड फॉर्म को हमने फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स दिया. ठीक है. इस टाइप का कोई जुमला हो तो समझ लेना ये पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है, एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पास्ट सिंपल टेंस. फॉर एग्जांपल एक और भी होता है ता था. कुरैश बुतों की पूजा करते थे. दैट इज आल्सो पास्ट सिंपल टेंस. Okay, because that is a habit. First of all, in Old English, you can say we always use used to, but we have cut that used to. Americans have cut the used to. They always used in past simple tense. कुरैश बुतों की पूजा करते थे. कुरैश used to worship idols. That is also correct, but we can use it in past simple tense. Quraysh, the Quraysh just worshipped the idols. Okay, first subject, no helping verb, because in past sentence, past simple tense there is no helping verb. Second form of main verb and idols. Object. Okay, that is past simple tense. इस टाइप का कोई जुमला है एग्जाम में तो आप इसको ट्रांसलेट पास्ट सिंपल में आराम से कर सकते हैं. और अगर MCQs हो बोर्ड के पेपर में तो आप उसको नेगेटिव करना है तो आप ये रूल अप्लाई करेंगे, इंटरोगेटिव में करना है तो ये रूल अप्लाई करेंगे. ओके. नाउ व्हिच इज अनदर टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. वी कैन कॉल इट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव. ओके, यू कैन कॉल इट प्रोग्रेसिव, इधर प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस टेंस. रूल्स. What are the helping verb of past continuous tense? Was, were. Present continuous tense is, am, are. Past continuous tense was and were. With if subject is he, she, it, or any singular noun, and I, also I, he, she, it, or any singular noun, we will use was. If subject is you, we, they, or any plural noun, we will use were. Form of main verb. Fourth of form of main verb or ing form of main verb. But you use fourth form or ing form. Negative, simply was not, were not. Was not, were not. Interrogative, was, were before subject, and question mark at the end. वॉज वर सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, लास्ट में हम क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे. ओके. उर्दू सेंस, जुमले के आखिर में रहा, था, रही, थी, रहे, थे, आए, समझ लेना वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है. मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है, रहे. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे. फॉर एग्जाम्पल हम पतंग उड़ा रहे थे. ओके. इन ट्रांसलेशन व्हाट विल डू? कीप इन द माइंड सब सेंटेंस स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स. व्हिच इज सब्जेक्ट है हम. व्हाट इज इंग्लिश ऑफ हम? वी. व्हाट विल डू देन? Object or helping verb. Which are the helping verb? Was and were. With we, what will you use? Was or were? Were. We were. After then, what will you use? Form of main verb. Which is form of main verb? Uda. What is the English of uda? Fly. Fly, flight, 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 flying. Flying. What is object here? Kites. Patang. What is the English of patang? There is no other words. If there are no other words, we will not use other words. Okay. Negative, was not, were not. What we will do? We were not. All other will be the same.
flying kites. Interrogative, was verb before the subject and question mark at the end of sentence. Verb, we flying kites. लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स यूज करें. ओके, दैट इज सिंपल प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इफ यू हैव लर्न प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट perfect continuous tense and past simple, all other sentence you will learn very easily because each sentence depend on the other sentence. Okay, another sentence, which is another sentence tense past perfect tense, which is another sentence past perfect tense. Rules, helping verb of past perfect tense, had. Form of main verb, which form of main verb you use in past perfect tense? Third form. Negative, just had not. Interrogative, had before subject, and question mark at the end. उर्दू सेंस, जुमले के आखिर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है, चुकी है, चुकी है, या है, ये है. पास्ट परफेक्ट टेंस चुका था, चुकी थी, या था, ये थे, या ये थी, वगैरह वगैरह. ओके, एग्जाम्पल, मैं टेंसेस सीख चुका था, या मैंने टेंसेस सीख लिए थे. ये थे या चुका था है तो वो समझ लेना पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला है. किस टेंस का जुमला है? पास्ट परफेक्ट का. कैसे पता चला आपको? लास्ट में चुका था है. ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे. तो ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या हम माइंड में लाएंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर. जुमला जनरली बनता कैसे है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स. Okay, which is subject here? I is subject here. First of all, we will use subject. After that, what we use? Helping verb. With I, what we will use? Had. After that, learned. Tenses. Subject I, helping verb had, learn tenses. Negative I had not learned tenses. Interrogative, first of all, what we use? Had before subject. At the end of sentence, we will use question mark. Okay, that is simple translation of past perfect tense. Now, last tense of today is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Which are the helping verb of past perfect continuous tense? Had been. Present perfect continuous tense have been, has been. Past perfect continuous tense had been. Form of main verb, if there is continuous, fourth or ing form. Negative, had not been. Had not been. Not had been not. हम had been not यूज नहीं करेंगे, ये भी होता है, लेकिन had not been is correct. Interrogative कि had before subject and question mark at the end.
सब्जेक्ट से पहले हेड यूज करेंगे, लास्ट में हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क्स। उर्दू सेंस रहा था, रहे थे प्लस वक्त। जुमले के आखिर में रहा था, रहे थे आए और वक्त भी जाहिर हो, बीच में दरमियान में वक्त भी जाहिर हो। जैसे मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहा है, रही है और वक्त दिया गया हो और जुमले के आखिर में रहा है, रही है, आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर रहा था, रही थी और वक्त दिया गया हो तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हम 2 घंटों से इंग्लिश सीख रहे थे। अंग्रेजी इंग्लिश सीख रहे थे। अच्छा, कैसे पता चला कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? जुमले के आखिर में देखेंगे रहे थे, उसके बाद क्या देखेंगे? अगर वक्त है, हाँ वक्त है 2 घंटों से, वक्त भी दिया गया है 2 घंटों से, ठीक है, वक्त भी हो और जुमले के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थे आए तो समझ लेना वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। उसकी ट्रांसलेशन हम अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? हम की इंग्लिश क्या है? वी। उसके बाद क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन से इसमें? हेड बीन, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हेड बीन। उसके बाद फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, कौन सी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करेंगे? फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म है? यहाँ पे सीखने मेन वर्ब है। ओके, सीखने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्न, LEARN, लर्न, लर्न्ड, लर्न्ड। वी हैड बीन लर्न्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आफ्टर देन अदर वर्ड, व्हिच आर अदर वर्ड्स? 2 घंटों से। इसके साथ फॉर यूज होगा, सिंस, फॉर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 काउंटिंग नंबर है, 1 2। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काउंटिंग नंबर होगा तो फॉर यूज करेंगे, नहीं तो सिंस यूज करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर एंड सिंस का यूज होता है। 2 hours। ओके, नेगेटिव हैड नॉट बीन। all other sentence, all other words will be same. English for 2 hours. Interrogative, had before subject. We learnt English for 2 hours. ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक जुमले को समझने के, सॉरी टेंस को समझने के लिए आपको 2 चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर, जनरल सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। हर टेंस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स हम जो सीख चुके हैं टेंसेस में, उनके हेल्पिंग वर्ब्स, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, उर्दू सेंस बताता जा रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन। पास्ट सिंपल हेल्पिंग वर्ब्स नो हेल्पिंग वर्ब्स, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, पास्ट परफेक्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन। फ्यूचर सिंपल शैल विल, फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी विल बी, फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव विल हैव, सॉरी shall have been, will have been, future perfect conditions. Form of main verb, present simple first, present continuous fourth, present perfect third, present perfect continuous fourth, past simple second, second सिर्फ past simple के साथ, again I am repeating, past simple के साथ यूज करते हैं। past continuous fourth, past perfect third, past perfect continuous fourth। उर्दू सेंस, प्रेजेंट सिंपल ता है, ती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, या है, ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वक्त दिया गया और रहा है, रही है। पास्ट सिंपल या, ई, ये, या, ता था, ते थे। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुके थे, या था, ही थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वक्त दिया गया हो, आखिर में रहा था, रही थी, वगैरह वगैरह। Into English. Okay, I am giving Urdu sentences of 10 years. You have to translate it into English. Okay, write down. This is your diary. Translate the following sentence. Translate the sentences. ये या तो पास्ट सिंपल के सेंटेंस होंगे
पास कंटिन्यूस के होंगे या पास परफेक्ट या पास परफेक्ट कंटिन्यूस के। मैंने से एक तोहफा भेजा। ये 2017 में आया है। कल तुम स्कूल क्यों आए थे? 2016। वो कब इस्लाम आबाद गया? 2015। बच्चे कुछ देर पहले सड़क पर खेल रहे थे। 2013। लास्ट सेंटेंस आई एम गिविंग यू। हम रात को अपना होमवर्क कर रहे थे। Okay, these 5 sentences are written on the board. You have to translate it according to the rules of English grammar, tenses and sentence structure. I hope that you have understood the tenses, past tense and this form very well. Thank you and Allah Hafiz.